Hello. This is second part of the resources lesson and human resources. Human resources include people who serve us in any way. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skills, and technology to do so. It includes people who serve us in one way. Your teacher, doctor, carpenter, cobbler, etc. are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. Okay, this is part 2 of your lesson, resources. Here we are going through it. um, part 1 part 1 is already described. Okay, I already have described this part 1, and now we will study the second part. On the basis of their stock, on the basis of their stock, resources are classified as renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Those resources which can get renewed, मतलब जो resources दोबारा से renew हो जाते हैं, मतलब हम उनको बना सकते हैं दोबारा से. Again we can make them in quick time. In quickly means short period of time, replenish. Again making of yeah, quickly they can be renewed. They are renewable resources. That solar and wind energy, they are renewable resources. Second type of resources are non-renewable resources. These are which are present in the limited stock and once exhausted may take thousands of years to renew. तो ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, जिनका स्टॉक लिमिट में होता है, और एक बार अगर वो ख़त्म हो जाए तो उनको हज़ारों साल लग जाते हैं उन्हें दोबारा से बनाने में. कोल और पेट्रोलियम इस टाइप के रिसोर्सेज है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, resources can be classified as ubiquitous resources and localized resources. Ubiquitous resources, we will study later on. Coal and petrol, they are non-renewable. They take thousands of years to get renewed. Therefore if once they get exhausted, it's very difficult for one to get them back. Okay, so this is the two types of resources. Ubiquitous resource is found everywhere, like air. Air is present everywhere. Whenever you breathe in air, that is present everywhere. This is ubiquitous resource. Ubiquitous means present everywhere. Whereas localized resource is found in certain part of the world. Like we cannot find coal anywhere. एवरीवेयर कोल इज़ नॉट प्रेजेंट. कोयला जो है वो सब जगह नहीं होता है, और ये किसी लोकल एरिया में होता है. किस जैसे कोल की माइंस जो हैं वो झारखंड एरिया में या झरिया बिहार में हैं, तो पूरे देश में नहीं है. हिमाचल में नहीं है कोल, या साउथ में कई जगह नहीं होगा. तो ये दीज आर लोकलाइज्ड, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है ये, तो उनको लोकलाइज रिसोर्स बोलते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड. और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका नेचुरल रिसोर्सेज का, जो प्राकृतिक संसाधन है इनका, जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जहाँ पर ये पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कई तरह के फिजिकल फैक्टर्स हैं, भौतिक कारणों पर. जैसे कि टेरेन, वो क्षेत्र कैसा है, क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण कैसा है, अल्टीट्यूड, वहाँ की हाइट क्या है, और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल. जो इनका रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, सब जगह बराबर नहीं है, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफरेंट ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. आप देख रहे हैं कि जो जगह जगह ये जो फैक्टर्स होते हैं अलग होते हैं. कई जगह हाइट कम होती है, कई जगह हाइट ज़्यादा होती है. समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज, क्या हाल है, sometimes natural resources, they when the original form has been changed, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. जो natural resources हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो प्राकृतिक रूप से जो जिस रूप में विद्यमान है
वो उनकी उस रूप में हम उनका प्रयोग नहीं करते, हम उनको रिफाइन करके उनको साफ करके यूज़ करते हैं। जैसे कि जैसे कि जो आयरन है, लोहा है, उस वो जो माइंस में जो मिलता है उस वो एक ओर के रूप में मिलता है। बट हम उसको चेंज करके हम उसको आयरन रिफाइन करके आयरन के तौर पर यूज़ करते हैं। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, machinery and vehicle, and these things, bridges, पुल, जो रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब चीज़ें कहलाती हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बिकॉज ह्यूमंस they are using them, they are making them also. Technology is also a human made resource. Human made resources have not been provided to us by nature. प्रकृति में प्राकृतिक रूप से ये चीज़ें हमें नहीं मिली हैं. ह्यूमन बींग्स हैव यूज देयर इंटेलिजेंस टू मैन्युफैक्चर देम फॉर देयर ओन यूज़. हमने ह्यूमन बींग्स ने उनको अपने दिमाग को, अपनी क्षमता को यूज़ किया है, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ किया है और उन चीज़ों को बनाने में अपना योगदान दिया है. ऐसे एग्जाम्पल्स है जैसे कि व्हीकल्स, जो जो कारें, कार या ट्रक्स या ट्रेन्स, ये सब जो कैरी करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, टेलीफोन, दे all have been made by the human resource. Human resources used human resources are the people we who serve us in any way. टीचर्स, वो भी ह्यूमन रिसोर्स है. कारपेंटर, डॉक्टर, कॉबलर जो शूज़ बनाता है, ये सारे जो लोग हैं जो हमें सर्व करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skills and technology to do so. और जो लोग हैं, people हैं, अब वो नेचर का, प्रकृति का सबसे ज़्यादा उपयोग करके वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि अपनी नॉलेज से, ज्ञान से, कुशलता से और तकनीक से, जो कि यूज़ हो सकती हैं फॉर ह्यूमंस. देयरफॉर ह्यूमन, we are a great resource. Education and health help in making people a human resource, valuable resource. If we are educated, we can make more and more use of the resources. Even health also help improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is called human resource development. Human resource development क्या है? जो जो हम पर्सन्स जो हैं, हम जो व्यक्ति हैं, इनका डेवलपमेंट करना, उनकी प्रगति होना किस क्षेत्र में? स्किल्स की, उनकी कुशलता वो और से और कुशल हों ताकि वो और रिसोर्सेज को अपने बेटर रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज कर सके. देयरफॉर इट इज़ वेरी मच नीडेड. So resource conservation is the concept of using resources carefully so that they do not end up quickly. कंजर्वेशन कंसेप्ट यहाँ पर भी आया है. संरक्षण, रिसोर्स का, संसाधनों का संरक्षण करना, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है, दे आल्सो नीड द रिसोर्सेज, कोल की, पेट्रोलियम की, दे आल्सो नीड दीज थिंग्स विच आर very much valuable and which are very much less in very much less quantity present in the our earth. So therefore we have to keep using them at a fast pace. हम बहुत ज़्यादा फास्टली यूज़ कर रहे हैं. हम कोल और पेट्रोलियम सब ख़त्म कर रहे हैं पृथ्वी पर. और इससे क्या फ्यूचर जनरेशन जो होगी, हमारी जो आगे की जो जनरेशन है, आगे की जो पीढ़ियाँ हैं, उनको यूज़ करने के लिए वो कोल और पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं होगा. तो देयरफॉर वी मस्ट यूज़ दिस रिसोर्सेज केयरफुली इन अ बैलेंस्ड वे सो दैट हम अपनी नीड्स को भी पूरा कर सकें और उनको संरक्षित भी कर सकें. और दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल मतलब टू कीप द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर आल्सो. तो हियर आर सम principles of sustainable development to sustain those resources, to keep up these resources. What we can do? Respect and care all forms of life. जितनी भी जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, और साथ में जितने पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करें, केयर करें. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो हमारी जो व्यक्ति की जो ज़िंदगी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बेटर क्वालिटी का बनाएं. कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी.
हमारी जो वो अर्थ है वो वाइट, उसमें बहुत ज़्यादा एक वाइटल फोर्स है, मतलब जो उसको उसको लिविंग रखती है, उसको चला रखती है। और साथ में उसमें डाइवर्सिटी भी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आर देयर। तो मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनको उनका यूज़ करना, उनको हम सुरक्षित रूप से प्रयोग करें और उनको ख़त्म नहीं करें, डिप्लीट नहीं करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमारी जो अपनी पर्सनल जो एटीट्यूड है, विचार है हमारे, और हमारी जो हम जो व्यवहार में प्रयोग लाते चीज़ें, एनवायरनमेंट, प्रकृति के रूप, प्रकृति के बारे में, उसको हम चेंज करें। हम बेटर लाइफ, उनको बेटर लाइफ दें, मतलब हम प्रकृति का संरक्षण करें। enable communities to care for their own environment। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो जो लिव करती हैं अर्थ पर, उनको हम उनको समझाएं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो, उसका रहना, हमारी प्रकृति का रहना, हमारे वातावरण को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और हम उसकी केयर करें, सारी लाइफ फॉर्म्स को बचाएं और